فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قالت سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة بعد سعيد في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وآل بلند درود اللهم صل على محمد وآل محمد کہاں جائے آنکھیں بیابان ہے سو شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے ذرا کہاں جائے آنکھیں بیابان ہے سو شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے رونے پہ پہلا مصائب کا سہرا اکیلی ہے زہرا محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمد کرتا ہوں ثنا کرتا ہوں ذکر خیر و نام کرتا ہوں پنجتن پاک کا غلام و دانش پیغمبر کو سلام کرتا ہوں اللهم صل على محمد وآل محمد علی کیا کر علی کیا کر ذکر کرو جیا کر وہ ولی نہیں جس کے دل میں علی نہیں وہ ولی نہیں جس کے دل میں علی نہیں جس کے دل میں علی نہیں اس کو جنت ملی نہیں اللهم صل على محمد وآل محمد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃ اللہ فضل و امام مہدی برکت اللہ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم عمل کرے گا اس کا ثواب اپنی جگہ پر ہے ہی ہے اور پھر وہ آگے اپنی باتوں کو پہنچائے گا. اسی طریقے سے اہل بیت کا ذکر جو ہے آگے بڑھا ہے. اہل بیت کا ذکر جو ہے ایسے ہی آگے نہیں بڑھا ہے, بہت سی قربانیاں دینی پڑی ہیں. جیسے ابھی ہم سب نے ایک قربانی دی ہے, آپ سننے والے جو ہے وہاں سے یہاں تک آئے ہیں, یہ وقت کی قربانی ہے, مال کی قربانی ہے. جن لوگوں نے اس کا اتنا اہتمام کر کر یہاں پر اہل بیت کا ذکر رکھا, یہ بڑی قربانی ہے. اور ناچز کی بھی ہم سب کی بھی قربانی ہے. تو قربانی کے بغیر اہل بیت کا ذکر آگے نہیں بڑھا ہے. آج جو جس کا ذکر کیا جائے گا وہ ہے بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. اللهم صل على محمد اس در سے مانوس ہوا, اللہ نے اس کو کامیاب کر دیا. ایک صلوات پڑھیں بر محمد. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ مولا صبح ہو گئی ہے اور آپ کی تفسیر ختم نہیں ہو رہی ہے. تو مولا نے فرمایا عبداللہ بن عباس میں کیا کروں کہ اللہ نے تمام علم اس قرآن میں رکھا ہے. اللہ نے تمام علم اس قرآن میں رکھا ہے. کوئی خشک اور کوئی تر چیز ایسی نہیں جو قرآن کے اندر نہیں ہے. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی خشک اور کوئی تر چیز ایسی نہیں ہے جس کا ذکر میں نہیں کر سکتا, اس قرآن کے اندر ہے. اور جو کچھ قرآن کے اندر ہے وہ سورہ حمد میں ہے, آپ نے بار بار سنا ہے. اور جو کچھ سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے, اور جو کچھ بسم اللہ ہے وہ بائے بسم اللہ ہے. وہ انا نقطۃ تحت الباء, اور میں وہی نقطہ ہوں جو بے کے نیچے ہے.
सलवात पढ़े पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। तो अज़ीज़ान गिरामी, यहाँ पर हम मौलाए कायनात के चाहने वाले हैं। मौलाए कायनात पास पूरा कुरान का इल्म था और कुरान क्या चीज़ है उसको थोड़ा सा समझाने के लिए मैं आपकी तवज्जो गुज़िश्ता अंबियाओं की तरफ लेना चाहूँगा कि देखिए, ईमान पहले लोगों पर जो पुख्ता होता था वो मौजूज़ा देखकर होता था, और जो मौजूज़ा नहीं देखता था उसका ईमान उतना पुख्ता नहीं होता था। मिसाल के तौर पर अंबिया आते थे, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने तबलीग की 950 साल, ज़्यादा लोग ईमान नहीं लाए, कुछ लोग ईमान लेकर आए। उसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी तबलीग की, लेकिन कुछ मौजूज़ात उनके साथ हुए, जैसे उनको आग में डाला गया और फिर आग ने उनको जलाया नहीं। ये मौजूज़ात देखकर बहुत से लोग ईमान लेकर आए। या एक सलवात पढ़ें। तो जब कोई मौजूज़ा देखा जाता है तो लोग ईमान जल्द लेकर आते हैं। यानी लोगों को अल्लाह भी क्या करता है कि ईमान जल्द लाने के लिए अंबियाओं को कुछ मौजूज़ा देता है। उसी तरीके से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मौजूज़ा क्या था कि वो लाठी को अगर नीचे फेंकते तो अज़दहा बन जाता, और लाठी को उठाते तो फिर वो लकड़ी बन जाती। उसी तरह अपने हाथ को यदि बैसा कहते हैं, गिरेबान में डालते और फिर निकालते तो रोशनी आती थी। तो ये दो मौजूज़े देकर अल्लाह ने फिरौन के पास इज़हबा इन्नहु तगा, वो बगावत पर उतर आए, तुम दोनों जाओ, हारून को और मूसा अलैहिस्सलाम। लेकिन मौजूदा देखने के बाद उसने क्या कहा कि ये तो जादू है। तो जादू कहने के बाद उसने कहा कि इससे बड़े जादूगर तो हमारे पास हैं। यानी उस वक्त जादू का दौर था, और जैसा दौर होता है वैसा ही मौजूदा दिया जाता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जादू का जोर था, यानी सब लोग बड़े बड़े माहिरीन थे जादूगर। इसीलिए अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जो मौजूदा दिया, देखने में तो वो जादू ही लग रहा था, लेकिन एक मुकाबला रखा गया जिसमें जादूगर आए, इसलिए कि ये साबित करने के लिए कि मूसा का जो ये मौजूदा है वो जादू है। जब महफिल सजाई गई और वो मेले का दिन था और सब लोग आ गए और वो जादूगर भी पहुंच गए। जादूगर को पूरा यकीन था कि हम ही जीतेंगे, क्योंकि वो बहुत माहिरीन थे, जादू में माहिर थे। वो समझ गए थे कि हम ही जीता। मूसा फिरौन से पूछा भी कि अगर हम जीत जाएंगे तो हमको इनाम है? हाँ बिल्कुल है। तो जब शुरुआत हुई तो उन्होंने कहा कि आप डालिए अपनी रस्सी। मूसा अलैहिस्सलाम ने तो उन्होंने डाला, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपनी रस्सी डाली तो वो पूरे जो सांपों को खा गया। जादूगर ने जब ये देखा कि ये तो कोई जादू नहीं लग रहा, क्योंकि जादू इस तरह का नहीं होता है, जादू लकड़ियों को नहीं खा सकता है, वो समझ गए क्योंकि वो माहिरीन थे। तब उन्होंने कहा कि आमन्ना बिरब्बि मूसा व हारून, हम मूसा व हारून के रब पर ईमान लेकर आए। तो उनका ईमान पुख्ता हो गया। यहाँ आप बात को समझ रहे हैं, मेरी बात में पहुंचाने में कामयाब हो रहा हूँ। एक सलवात पढ़ता हूँ। एक मरतबा और सलवात पढ़ें। तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब है कि जब मौजूदा देखता है इंसान अंबिया का, तो उनको एक दलील मिलती है, हाँ वाकई ये रसूल हैं, उनके पास एक दलील है, वाकई रसूल हैं। उसी तरीके से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में देखिए, अगर सिर्फ ही तबलीग करते, सियाहत करते, जंगलों में फिरते रहते, सबको समझाते रहते, लेकिन उतने लोग ईमान नहीं लाए। लेकिन वो क्या करते थे कि जो अंधा होता था उसको ऐसे हाथ फेर कर अच्छे कर देते, यानी एक मौजूदा है। दूसरा मौजूदा क्या था? सबसे बड़ा मौजूदा, मुर्दे को जिंदा करते थे। ये उस वक्त मौजूदा था जब लोग, उस वक्त के तबीब बहुत माहिर थे,
तबीब जो है माहिर थे, यानी बहुत एक से एक इलाज करने वाले थे, एक से एक इलाज करने वाले थे उस वक्त। लेकिन ऐसा भी इलाज कोई नहीं कर सकता था कि मुर्दे को जिंदा करना। हाँ, बड़े से बीमार को आप सही कर सकते हैं, लेकिन एक मुर्दे को जिंदा करना, ये उस जमाने के जो तबीब थे वो ईमान लाने के लिए उनको लिए काफी था कि ऐसा कोई तबीब हमने नहीं देखा। एक सलवात बड़े मोहम्मद। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उन्होंने भी मौजूदे दिखाए, चांद को तोड़ा। लेकिन फर्क क्या है अज़ीज़ान गिरामी, मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना एक महदूद ज़माना है, ईसा अलैहिस्सलाम का ज़माना एक महदूद ज़माना है, और नूह अलैहिस्सलाम का ज़माना एक महदूद ज़माना है। उस ज़माने के लोगों के लिए वो पैगंबर हैं, उस ज़माने के लिए वो उनकी किताब है, उस ज़माने के लिए उनकी शरीयत है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ऐसी नहीं है। वो ता क़यामत रसूल हैं और पूरी दुनिया के लिए रसूल हैं। इस्लाम जो है पूरी दुनिया के लिए आया है, और अल्लाह का रसूल जो है पूरी दुनिया के लिए ता क़यामत के लिए है। तो अल्लाह को भी ऐसा चाहिए कि एक ऐसा मौजूज़ा रखे, ऐसा मौजूज़ा छोड़े तो आने वाले लोग भी उसको देखें और ईमान उनका पुख्ता हो। तो मैं पूछूंगा कि आज वो कहाँ है? चांद को थोड़ा एक वक्त था, फिर वो जुड़ गया। कुछ लोग केरला में भी देखकर ईमान लेकर आए, ठीक है, लेकिन आज कहाँ है मौजूज़ा? मौजूज़ा होना चाहिए, क्योंकि शरीयत ता क़यामत, किताब ता क़यामत, रसूल ता क़यामत, तो मौजूज़ा ता क़यामत कहाँ पर है? तो अज़ीज़ान गिरामी मौजूज़ा भी है। मौजूज़ा कौन सा है? मौजूज़ा है कुरान। एक सलवात पढ़े मोहम्मद। लेकिन कुरान तो हमें कोई मौजूज़ा दिख नहीं रहा। आपको दिख रहा है कोई मौजूज़ा दिख रहा है कि जैसे छूते ही कुछ हाड़ अपनी जगह से हट रहा है, या अपने जिसके घर में है उसके घर में बहुत बरकत ही बरकत है, या कोई ऐसा कुछ होना चाहिए मौजूज़ा। क्या मौजूज़ा है उसके अंदर? क्या है कि या उसको लेकर जाएंगे तो हम जंग जीत सकते हैं, ऐसा कोई मौजूज़ा है उसके अंदर? ऐसा दिख रहा है आपको? तो मौजूज़ा क्या है? तो वो मौजूज़े को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक सलवात पढ़े मोहम्मद। जब कुरान उतरा तो उस वक्त बड़े बड़े अरब के शायर मौजूद थे। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का सहर का ज़माना था, यानी जादू का ज़माना था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का तबीब का ज़माना था, यानी डॉक्टर्स हुआ करते थे। उसी तरीके से रसूलुल्लाह के ज़माने में क्या था कि वो शेर व शायरी हुआ करती थी अरबी ज़ुबान में, और एक से एक अरब के माहिरीन शायर थे। लेकिन जब कुरान की आयतें आना शुरू हुई तो उन लोगों ने देखा, उन लोगों ने परखा, उन लोगों ने समझा कि ये कोई शायर, मामूली शायर का कलाम नहीं है, ये बिल्कुल अल्लाह का कलाम है। एक इसी तरीके से जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक मेला लगता था, रसूलुल्लाह के ज़माने में भी मेला लगता था। उस ज़माने में क्या हुआ, रसूलुल्लाह ने भी चैलेंज किया कि एक मेले के ज़माने में एक आयत लिखकर वहाँ पर रख दी, और इस आयत को पढ़ने के लिए, देखने के लिए बड़े बड़े माहिरीन आने लगे। और वो कौन सी आयत थी? इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिका हुवल अब्तर। ये एक सबसे बड़ा माहिर जब आया और उसने देखा कि इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिका हुवल अब्तर, क्योंकि वो बहुत बड़ा शायर था, अरब का शायर था। वो समझ गया कि ये शायरी इंसान के बस की बात नहीं, इसीलिए उसने एक लाइन और जोड़ दी, मा हाजा कलामुल बशर। एक सलवात पढ़े मोहम्मद। यानी उसने तस्दीक की कि ये कोई बशर का कलाम नहीं हो सकता। यानी क्या उसके अंदर उसने देखा? अब मेरा ये सवाल है, क्या उसको मौजूदा नजर आया? उसका मौजूदा अज़ीज़ान गिरामी ये है कि पूरा कुरान जो है वो अरबी में है, पहली बात तो। और अरबी में वो देखिए, इन्ना आतैना कल कौसर पर खत्म है, फसल्लि लिरब्बिका वनहर, एक तरन्नुम है उसके अंदर, एक शेर शायरी जैसा लग रहा है। लेकिन जहाँ ज़ेर आना चाहिए वहीं ज़ेर है, जहाँ ज़बर आना चाहिए वहाँ ज़बर है, जहाँ जो लफ्ज़ आना चाहिए वहाँ जो लफ्ज़ है। अरबी ज़ुबान हमारी उर्दू ज़ुबान की तरह नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पर मैं बयान करूँ कि जैसे उर्दू में बारिश को बारिश ही कहते हैं, समझ, बारिश आ रही है कहते हैं,
लेकिन अरबी में ऐसा नहीं है। अरबी में कैसा है कि बारिश अगर जोर से आ रही है तो उसको एक अलग नाम है, बारिश अगर धीरे आ रही है तो उसको एक अलग वर्ड है, उसको एक अलग लफ्ज़ से बोलते हैं। अगर बारिश बहुत ही धीमी भी आती है, वैसी आ रही है तो एक अलग लफ्ज़ है। बारिश कभी तूफान की तरह आती है, यानी वो लफ्ज़ को देखकर पहचाना जाता है कि कैसी बारिश आ रही है। इस तरीके से अरबी जुबान होती है, और जहाँ वो जो लफ्ज़ रखना है उस लफ्ज़ को वहीं पर रखा गया है, ये उसका मौजूदा है। एक सलवात पढ़े। लेकिन इस मौजूद को हमने कभी देखने की कोशिश की है? इस मौजूद को देखने के लिए अगर हमको चाहिए तो हमको अरबी सीखना होगा। वैसे अरबी ज़ुबान की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं। जो पूरा हिफ्स कुरान का हिफ्स करते हैं वो भी इस मौजूदगी को नहीं दे सकते। वो देख सकते हैं सिर्फ काले अक्षरों को देख सकते हैं या काले अल्फ़ाबेट्स को देख सकते हैं। ये कुरान की एक क्या कहूँगा, एक मजलूमियत है। कुरान की बहुत बड़ी मजलूमियत है अज़ीज़ान गिरामी। देखिए, छोटे बच्चे को भी जब हम प्राइमरी स्कूल में डालते हैं और उसको एक लैंग्वेज सिखाने के लिए डालते हैं, जैसे इंग्लिश, तो टीचर क्या करते हैं, एप्पल अगर उसको सिखाना है तो सिर्फ एप्पल पढ़ना नहीं सिखाती, वहाँ पर एक एप्पल ड्रॉ किया होता है। और किताब में भी आपने देखा होगा कि एफ एप्पल लिखा तो वहाँ पर एप्पल। क्यों? ये दोनों तरह से होती है कि एप्पल जब बच्चा कहता है तो उसको उसके जहन में एक चीज़ आती है कि इसको एप्पल कहते हैं, यानी फिर जब बड़ा होता है जैसे वैसे, तो जब वो सेंटेंस पढ़ता है वो सेंटेंस को समझ जाता है इस तरीके से। लेकिन कुरान जो पूरे कानून की किताब है, ये कानून पढ़ा जा रहा है लेकिन समझा नहीं जा रहा है। वत्तीन वज़ैतून बोलेंगे तो हम नहीं समझ सकते कि तीन किसको कहते हैं। तो ये मजलूमियत है कुरान की। इसीलिए रसूलुल्लाह क़यामत के दिन शिकायत भी करेंगे। क्या कहेंगे? क़ाल रसूल या रब्बी इन्ना कौम इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, यानी ऐ अल्लाह, मेरी कौम ने इस कुरान को छोड़ दिया था। तो मैं कहूँगा या रसूलुल्लाह, हमने कहाँ छोड़ा? हमारे पास तो बड़े बड़े हिफ्ज़ के मदरसे हैं, हमारे पास तो हाफिज़ान कुरान हैं, हमारे पास तो बहुत लेकिन इसको पकड़ना नहीं कहते। हिफ्ज़ करना पकड़ना नहीं है, कुरान को पढ़ना पकड़ना नहीं है, बल्कि कुरान को समझना और उसको नाफिज करना, उसके कानून को नाफिज करना ये है। ना हम कुरान को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ना नाफिज करने की कोशिश कर रहे हैं। बस कुरान को हमने एक सवाब की किताब के तौर पर लिया है कि कोई मरता है तो हम यासीन पढ़ते हैं, कोई पैदा होता है तो कोई और सूरा पढ़ते हैं, कोई मजलिस होती है तो कोई और सूरा पढ़ते हैं, कोई। ये सिर्फ पढ़ने की किताब नहीं है अज़ीज़ान गिरामी, एक कुरान एक कानून की किताब है। तो शायद सख्त हो रही है मजलिस, लेकिन मुझे ये कहने की ज़रूरत थी कि हम एक इंडियन होने की वजह से हिंदी सीखते हैं, क्योंकि हमारी इंडिया की किताब ज़ुबान है। हमको उर्दू आती है क्योंकि हमारी मादरी ज़ुबान है। कोई और जगह जाते हैं तो वहाँ की ज़ुबान सीखते हैं क्योंकि मुझे यहाँ पर रहना है। लेकिन अरबी जो है हमारे अल्लाह की किताब कुरान ज़ुबान है, हमारे रसूलुल्लाह की ज़ुबान है, कुरान की ज़ुबान है, अहले बैत की ज़ुबान है, जन्नत वालों की ज़ुबान है, कब्र में ज़ुबान है, महशर में ज़ुबान है। हम सब इनकी चाहने वाले हैं, लेकिन हम वो ज़ुबान सीखने से हासिल हैं, हम उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। अगर तवज्जो देते तो हम कुरान को समझते और उसका मौजूदा समझते। जब मौजूदा समझ कर ईमान को लाता है तो उसका ईमान पुख्ता होता है। आज हमारे ऊपर जो हालात गुजर रहे हैं, आपको शायद मैं थोड़ी सी मुतवज्जो करूँ कि इंटरनेशनल लेवल से भी और नेशनल लेवल से भी मुसलमानों को तबाह करने की और ख़त्म करने की कोशिश हो रही है। इंटरनेशनल लेवल से यहूदियों की तरफ से और नेशनल लेवल में वो भी है। ज़्यादा मैं खुलकर नहीं बात करूँगा। तो हमको क्या करना चाहिए कि हम अपने आप को बचाएं, अपने ईमान को बचाएं, अपने रसूल को बचाएं, अपने दीन को बचाएं। तो हमारे पास एक ही ताकत है, वो है कुरान। और कुरान को सिर्फ पढ़ने के लिए अगर हम इसी तरीके से इस्तेमाल करते रहेंगे तो हम ख़त्म होकर रहेंगे। अज़ीज़ान गिरामी, हमको चाहिए कि उसके लिए कुर्बानी देना है तो देना ज़रूरी है कि कुरान को समझ कर पढ़ें, उसको नाफिज करने की कोशिश करें।
उसको उसके जो कानूना है, उसके जो कवानीन है, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, तब जाके ये शिकायत दूर हो सकती है। वरना क़यामत के दिन जो रसूलुल्लाह शिकायत करेंगे कि इन्ना कौमी तख़ज़ू हाज़ल कुरआना महजूरा, तो ये जो शिकायत होगी बहुत हम पर भारी पड़ेगी। अल्लाह कहेगा कि हमने तुमको मौजूदा देकर भेजा था, कुरान देकर भेजा था, हमारे कानून के हिसाब से हमें चलना था, लेकिन हमने छोड़ दिया। या रसूलुल्लाह किसी काफिरों से नहीं शिकायत करेंगे, मुसलमानों से। इन्ना कौमी, मेरी कौम ने, कौम नहीं कहा, कौमी कहा, मेरे कौम ने इस कुरान को छोड़ दिया। तो क्या पकड़ा था? दुनियादारी पकड़ी थी। सलवात पढ़े पर मोहम्मद। अच्छा, दूसरी बात, क्या कुरान का ये जो सीखना बहुत मुश्किल है, क्या ये सिर्फ आलिमों का काम है या फिर यह हमारा काम नहीं है? नहीं, इल्म हासिल करना तो मुसलमान तमाम लोगों का काम है। तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमात, पूरे मुस्लिम और मुस्लिमात के लिए है। लेकिन क्या ये सख्त है? मेरा सवाल, सख्त है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कुरान खुद कह वलक़द यस्सरनल कुरआन फहल मिन मुद्दकिर। आप कुरान खोल कर देखिए, तर्जुमा देखिए। हाँ, सूरह अल-कमर 17, उसमें 3 मरतबा या 4 मरतबा ये आयत आई है कि वलक़द यस्सरनल कुरआन, हमने कुरान को आसान कर दिया, है कोई सीखने वाला। हमने कुरान को आसान कर दिया, है कोई सीखने वाला। सीखने से मुराद हम सिर्फ पढ़ने के लिए बात करते हैं, पढ़ने की बात नहीं हो रही है। सीखने से मतलब समझने की बात हो रही है, इम्प्लीमेंट करने की बात हो रही है। एक सलवात पढ़े बर पीछे होती हैं, वो दरवाज़ा उनके ऊपर गिरता है और पसलियाँ टूटती हैं और वो बेहोश होकर गिरती हैं। आवाज़ देती हैं, फिज़ा मुझे संभालिए, और एक मरतबा बेहोश गिरती। और जब होश आता है तो अज़ादारों, बीवी ने ना अपने गम का ख्याल किया, ना अपने दर्द का ख्याल किया, ना अपने ऊपर जो दरवाज़ा गया उसका ख्याल किया, बल्कि कहा अली कहाँ है। किसी ने कहा बीवी अली को ले जा रहे हैं। देखा कि अली को कुछ लोग ले जा रहे थे। एक मर्तबा बीवी आगे बढ़ती हैं, दरवाजे से बाहर चलती हैं, दहलीज से बाहर आती हैं और अली के पीछे आती हैं। कहते हैं अली को छोड़ दो, गल्लू अबल हसन, अली को छोड़ दो। जब 3 मर्तबा कहा, किसी ने जब नहीं सुना तो बीवी ने कहा अली को छोड़ दो वरना मैं बाल परेशान कर दूंगी। आज़ादारों, बाल परेशान करना यानी बाल खुले करना, और जब बाल अगर खुले कर देती तो अजीज़ान गिरामी क़यामत आ जाती। हाँ आज़ादारों, अबुल हसन ने जब ये देखा कि बीबी बाल खुले करने वाली हैं, एक मर्तबा सलमान ने देखा कि मस्जिद की दीवारें ऊपर उठ रही हैं, इतना ऊपर उठी हैं कि घोड़ा वहां से गुजर जाता था। अबुल हसन ने आवाज दी, फातिमा अपने बाल को परेशान ना करना। आज़ादारों, ख़वातीन मौजूद हैं, वो इस दर्द को ज़्यादा समझ सकती हैं कि एक तो पहलू शिकस्ता है और इसमें अपने शोहर को बचाने के लिए वो आगे बढ़ी हैं और वो लोग जालिम लेकर जा रहे हैं। एक मर्तबा बीवी ने जो अली ने जो बस्ता पहना था, एक कमर में कुछ कपड़ा पहना था, उसको पकड़ा और छोड़ने के लिए तैयार नहीं। वो लोग वहाँ से खींच रहे हैं, बीवी यहाँ से खींच रही है, वो लोग वहाँ जोर दे रहे हैं, बीवी यहाँ जोर दे रही है, बीवी के पैर खत खींच रहे हैं। हाँ ज़ादारों, एक मर्तबा उसी जालिम ने कुनफुस से कहा, कुनफुस, बीवी का फातिमा का हाथ छुड़ा। 2 रिवायत मिलती हैं अज़ीज़ान गिरामी, 2 रिवायत मिलती हैं कि एक में कहा है कि तुर्रा मार कर छुड़ा गया, एक रिवायत में मिलती है कि तलवार के दस्ते से छुड़ाया गया। हाँ ज़ादारों, आपकी आवाज़ें बुलंद हुई। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। एक मर्तबा जब कुछ लोग पूछते भी हैं कि जब अली इतने शुजा थे कि अली के सामने कोई टिक नहीं सकता था,
अली के सामने कोई ठहर नहीं सकता था। अली के तलवार के सामने अब्दुल जैसा पहलवान नहीं ठहर सका। तो ये लोग किस तरह लेकर गए। तो यहाँ पर मैं खुलासा कर दूं कि देखिए एक रिवायत की तरफ आपकी तवज्जो मैं लेता चलूं कि वो ज़माना है कि रसूलुल्लाह की रहलत होने वाली है और उससे कबल जिब्राइल आते हैं। जिब्राइल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं, ऐ रसूल, अली से अल्लाह को कुछ कहना है, मुझे कुछ पैगाम देना है, आप अली को बुलाओ। अली को बुलाया जाता है। जब अली को बुलाया जाता है तो रसूलुल्लाह कहते हैं, ऐ अली, जिब्राइल तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। जिब्राइल ने तुमको सलाम कहा है। वालेकुम सलाम। फिर कहा कि ऐ अली, तुमसे जो गदीर में दिया गया था वो ले लिया जाएगा, लेकिन तुम्हें तलवार नहीं उठानी है। हाँ आज़ादारों, जो जिब्राइल के अल्फाज थे अली के दिल पर चुभ रहे थे, क्योंकि जुल्म होगा, तलवार नहीं उठानी है, तुम्हारी ज़ौजा पर हाथ उठाया जाएगा, तुम्हें तलवार नहीं उठानी है, तुम्हारे घर का दरवाजा जलाया जाएगा, तुम्हें हाथ नहीं उठाना है, तुम्हें तलवार नहीं उठानी है, तुम्हारे ज़ौजा के पसलियां टूट जाएंगी, लेकिन तुम्हें तलवार नहीं उठानी है। हाँ आज़ादारों, अली ने चीख मारी, लेकिन कहा अगर अल्लाह व रसूल राजी तो मैं भी राजी। हाँ आज़ादारों, एक जो लक़ब है बीबी का, मुस्तज़िला कहते हैं, उसका मतलब ये है कि बहुत सताई गई बीबी। ऐसा जो लक़ब है, बहुत सताई गई बीबी। लेकिन अरब में उस लफ्ज़ को उस ऊँटनी के बारे में कहते हैं जिसके सामने उसका बच्चा नहर किया जाता है, यानी जिस ऊँटनी के सामने उस बच्चे को मारा जाता है, उसके छोटे बच्चे को मारा जाता है, उसको कहते हैं मुस्तहज़िला। तो अज़ादारों, ये लक़ब क्यों गिरा? तो देखा आपने कि ये लक़ब भी इसलिए गिरा क्योंकि बीबी के सामने जब दरवाज़ा गिरा तो वहाँ मोहसिन शहीद हो गए। और यहाँ आइए करबला की तरफ, करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इतनी मज़लूमियत से कत्ल किया गया कि मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम को कहना पड़ा, मेरे जद को इतनी मज़लूमियत से कत्ल किया गया जितना कोई जलील से जलील जानवर को भी नहीं किया जाता। तुम्हारे मौला सलाम आप पे सदबार या हुसैन, सब इश्क हुसैनी में है सदबार या हुसैन, सब पे हो करम आपका सदबार या हुसैन। हाजिर है आज़ादार या हुसैन, आज़ादार जिए करबला, जिए या हुसैन, जिए आज़ादार। मक्का मदीना नजफ करबला, इश्क खुदा का है यही रास्ता, फातिमा हसैन अली लापता, क़िबला मन्ना का रसूल खुदा, एक सुगंध एक लगन एक ज़बा एक दहन, पंजतन के नाम पर निसार है। बेटी अली की तुरबत जहरा पे आई है, बेटी अली की तुरबत जहरा पे आई है, कुड़ता लहू भरा हुआ भाई का लाई है, कुड़ता लहू हुआ भाई का लाई है, कहती है हुसैन की अम्मा उठो उठो, कहती है हुसैन की अम्मा उठो उठो, ज़ैनब से करबला का जरा माजरा सुनो, ज़ैनब से करबला का जरा माजरा सुनो, कहती है हुसैन की अम्मा उठो उठो, कहती है हुसैन की अम्मा उठो उठो, ज़ैनब से करबला का माजरा सुनो, ज़ैनब से करबला का जरा माजरा सुनो,
अम्मा मेरे जीगर हो चुके हैं चार, अम्मा हमारे नाना की उम्र नहीं लगा, अम्मा हमारे हाल पे हंसते हैं सब रवा। हुसैन की अम्मा उठो उठो, कि अम्मा उठो, जन्नत से करबला का जरा माजरा सुनो, अम्मा तरस के रह गए पानी को हम तमाम, अम्मा तरस के रह गए पानी को हम तमाम, अम्मा दिया न हमको किसी ने भी एक जाम, अम्मा दिया न हमको किसी ने एक जाम, अम्मा मेरे जी गए शिकल के रह गए, अम्मा लोमी माँ के बेचारे सो गए। हुसैन की अम्मा उठो उठो, जन्नत से करबला का जरा माजरा अम्मा हुसैन करबला में रह गए, अम्मा हुसैन करबला में रह गए, अम्मा हुसैन सारे मशायख सह गए, अम्मा हुसैन सारे मशायख सह गए, अम्मा हुसैन मर गए बेजार बेवतन, अम्मा हुसैन मर गए बेजार बेवतन, अम्मा हुसैन पूना हुआ सर हुआ कपन। हुसैन की अम्मा तेरी याद है, आसरा सजाद है, शादी ने शाद है, मेरी दा। अलविदा अलविदा या शहीद बेखदा, नाज रस्ते में नवाज करबला। अलविदा अलविदा या शहीद बेखदा, नाज रस्ते में नवाज करबला। खत्म हो गए सारे आसरे, अकबर व अब्बास मेरे ना रहे। खत्म हो गए सारे आसरे, अकबर व अब्बास मेरे ना रहे। कातिलों की भीड़ है हमारी हर तरफ, जाने को तैयार अब कैदियों के सब। इब्ने शाह पुतरा या हुसैन या हुसैन, इब्ने शाह पुतराब हो गई हो बेहिजाब, लौटाओ कामयाब दे मुझे दुआ। अलविदा अलविदा या शहीद बेखदा, नाज रस्ते में नवाज करबला। अलविदा अलविदा या शहीद बेखदा, नाज रस्ते में नवाज करबला। क्या सुनाऊं दर्द फक्र पंजतन, चाहे मैंने लाख है किए जतन। क्या सुनाऊं दर्द फक्र पंजतन, चाहे मैंने लाख है किए जतन। मेरी दाएं इतना बचा नहीं सकी, भाई तेरी लाश पे मैं आ नहीं सकी। आग दी कयामते या हुसैन या हुसैन, आग दी कयामते बच्चे दुश्मन। आग थी कयामते दिन में दो इमाम थे, बच्चे जिस्म काम थे आते किस तरह। अलविदा अलविदा या शहीद बेखदा, नाज रस्ते में नवाज करबला। अलविदा अलविदा या शहीद बेखदा, नाज रस्ते में नवाज करबला। अलविदा या शहीद बेखदा, नाज रस्ते में नवाज करबला। अलविदा अलविदा या शहीद बेखदा, नाज रस्ते में नवाज करबला। बादशाह हुसैन हुसैन, बादशाह हुसैन, बादशाह हुसैन हुसैन, बादशाह हुसैन, बादशाह हुसैन हुसैन, बादशाह हुसैन, बादशाह हुसैन हुसैन, बादशाह हुसैन। करबला इश्क़ खुदा इश्क़ बरू सुल्तान हुसैन, करबला इश्क़ खुदा इश्क़ बरू सुल्तान हुसैन। बादशाह हुसैन हुसैन, बादशाह हुसैन, बादशाह
Badeshah Hussain, Hussain, Badeshah Hussain, Shah Asta Hussain, Badeshah Asta Hussain, Di Asta Hussain, Di Bana Asta Hussain, Sardar Nadat, Daste Aziz, Hakka ke bina la ilaha Asta Hussain, Badeshah Hussain, Hussain, Badeshah Hussain, Badeshah Hussain, Hussain, Badeshah Hussain, Karbala, Ishq-e Khuda, Ishq-e Rasool, Sultan Hussain, Shah Hussain, Badeshah Hussain, Di Asta Hussain, Di Bana Asta Hussain, Shah Hussain, Badeshah Hussain, Di Asta Hussain, Di Bana Asta Hussain, Shah Hussain, Badeshah Hussain, Di Asta Hussain, Di Bana Asta Hussain, Karbala, Ishq-e Khuda, Ishq-e Rasool, Sultan Hussain. Ya Hussein. السلام علیکم عبد اللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المومنین، السلام علیکم ابن فاطمۃ الزہرا سید النساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغربا، السلام علیکم یا معین الفقراء والفقراء، السلام علیکم یا سلطان ابو الحسن علی بن مرشد رضا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا امام الانس والجان، اجل اللہ تعالی فرجک وسخر اللہ تعالی مخرجک وجعلنا من اعوانک وانصارک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔